پاکستان میں ہمیشہ سے عورتوں کے خلاف جرائم اور خاص طور پہ جنسی جرائم وہ ہمیشہ سے ایک سینسٹیو ایشو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات پہلے نہیں ہوتے تھے۔ پہلی بات تو بنیادی غلطی جو ہے اس شخص کی ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے، مجرم جو ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے وہی کلپریٹ ہے۔ السلام علیکم جی ناظرین، وائس آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم اکرام۔ جی ناظرین، حال ہی میں ایک سوشل میڈیا پر خبر ملی جو کہ بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی، نور مقدم کیس۔ یہ کیس کیا ہے اور کس طرح سے ان کا قتل ہوا، اسی لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سلمان عابد صاحب جو کہ مشہور تجزیہ نگار ہیں۔ انہی سے پوچھیں گے کہ آخرکار اس کیس کے معاملات، اس کیس کے علاوہ اور بھی بہت سے کیس جو ہیں پاکستان میں آئے دن رونما ہوتے ہیں۔ ابھی عثمان مرزا کیس بند نہیں ہوا کہ ابھی آپ کے پاس نور مقدم کا کیس آ گیا۔ تو سلمان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخرکار یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں اور اس واقعے کے پیچھے کیا حالات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مریم، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ سر، آئے دن پاکستان میں بہت زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے خیال سے پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ یہ چیزیں وائرل ہونا شروع ہو گئی ہیں، بہت زیادہ چیزیں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا یہ سوشل میڈیا کا ایکٹیو ہونا ہے یا پھر پہلے بھی یہ کیسز چلتے رہتے تھے؟ دیکھیے، پاکستان میں ہمیشہ سے عورتوں کے خلاف جرائم اور خاص طور پہ جنسی جرائم وہ ہمیشہ سے ایک سینسٹیو ایشو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات پہلے نہیں ہوتے تھے۔ پہلے تو آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا پاکستان ٹیلی ویژن کی شکل میں ہوتا تھا اور کچھ اخبارات تھے۔ اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن کے نئے چینلز آ گئے، اخبارات کا پھیلاؤ ہو گیا تو کچھ خبریں آنی شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے بعد پھر اس میں بہت تیزی آئی، یعنی چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ جو کہ قومی افراد کی زینت نہیں بنتے، ٹی وی کی زینت نہیں بنتے، پھر وہ سوشل میڈیا میں آتے ہیں تو پھر وہ ایک بڑی خبر بن جاتی ہے۔ تو یہ واقعات تو بہت تیزی سے ہو رہے ہیں، اور پچھلے چند برسوں میں خاص طور پہ معصوم بچیوں کے ساتھ، چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں وہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا الارمنگ ہے پاکستانی کانٹیکسٹ میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایک بڑا مہذب ملک ہے اور بڑا جسے کہتے ہیں ایک مسلم معاشرہ ہے، وہاں اگر اس طرح کے واقعات پیدا ہو رہے ہیں اور تواتر سے ہو رہے ہیں تو وہ ایک لمحہ فکری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ بالکل، کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں عورتوں کے خلاف جرائم نہیں ہوتے اور بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوتے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں کے جو عدالتی نظام ہے وہ بہت شاندار ہے، یعنی انصاف کے جو نظام ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، افیکٹو ہے، ایکسیسیبل ہے اور ریچیبل ہے۔ جو بھی لوگ چاہتے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان اداروں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو پہلے وکٹم خاتون، اس کے بعد جب وہ جاتی ہے انصاف کے لیے تو اس کو پھر طرح طرح کی جگہ کے اوپر جو ہے نا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، بلکہ ایک زیادتیوں کے واقعات بھی ان کے ساتھ ان اداروں کے اندر بھی ہو جاتے ہیں جہاں وہ انصاف کے ادارے ہیں۔ یعنی آپ نے کئی دفعہ یہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ پولیس اسٹیشن کے اندر ہی عورت کے ساتھ زیادتی ہو، بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہسپتالوں میں زیادتی ہے۔ پھر ہمارا عدالتی نظام، ہمارا تفتیش کا نظام وہ اتنا جسے کہتے ہیں لکوناز ہے، اس میں گیپس ہیں، جس کی وجہ سے جو کلپریٹ ہے ان کو سزا نہیں ملتی۔ پھر ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اس پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے بھی جو طاقتور لوگ ہیں ان کو جو ہے نا آپ ایک رعایت دے دیتے ہیں، اور اس رعایت کی وجہ سے پھر وہ بچ جاتے ہیں قانون سے، اور جو ان کو سزا ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے پھر پورے معاشرے میں یہ جرائم جو ہے نا ان کو پروموشن ملتی ہے، فروغ ملتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک اور بڑی وجہ جو پاکستان سمیت پوری دنیا میں پھیلی ہے وہ ہمارے ہاں جو میڈیا گلیمرائزیشن ہے، اس نے بھی بہت زیادہ جنسی واقعات کو ابھارا ہے۔ بالکل، اور یہ آپ دیکھیے، اب اپنے ڈرامہ دیکھیں، اپنی فلمیں دیکھیں، اپنے ایڈس دیکھیں، اس میں بھی جس انداز سے عورت کی تشہیر کی جاتی ہے اس سے بھی سوسائٹی کے اندر وہ پرووکنگ جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک وجہ، ایک فیکٹر ہے۔ پھر ہمارے ہاں بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بالکل، آپ ڈگریاں بانٹی جا رہے ہیں، ایک اچھا رسپانسبل مین، ایک اچھی رسپانسبل عورت نہیں بنا پا رہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جسٹیفیکیشنز کیا آتی ہیں کہ جی ہمارے تعلقات تھے، تعلقات خراب ہوئے، اس نے شادی سے انکار کر دیا، اس نے جنسی تعلقات رکھنے سے انکار کر دیا، کوئی وجہ بھی آپ ڈھونڈ لیں۔ سوال یہ ہے کہ ان واقعات کو بنیاد بنا کر کیا کسی لڑکی کے ساتھ قتل کرنا کیا جائز سمجھا جائے گا؟
क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं उस कत्ल को? क्या आप जो है वो मासूम बच्चियों के साथ जो रेप के वाक़यात होते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक ज़्यादा सीरियस अलार्मिंग है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। सर, कोई भी केस हमारे सामने रौनमा होता है, किसी भी तरह का, बच्ची के साथ रेप किया जाए, लड़की के साथ रेप किया जाए, लड़की को चौराहे पे कत्ल कर दिया जाए, माँ बाप गैरत के नाम पर उसको मार दें, गलत हमेशा लड़की को ठहराया जाता है। नूर मुकद्दम केस में अगर रोशनी डालें तो आप किसको गलत ठहराएंगे? देखिए, पहली बात तो बुनियादी गलती जो है उस शख्स की है जिसने उसको कत्ल किया है। यानी अगर कोई उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी था, कोई भी तनाज़ा था, उसने ज़्यादती भी की हो, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन उसकी सज़ा क्या ये होनी चाहिए थी कि उसको बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया जाए? तो बुनियादी तौर पर तो ये मुजरिम जो है जिसने इसको कत्ल किया है वही कल्प्रेट है, ठीक है ना। कल भी देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात की, जब उनके पिछले एक बयान से गलतफहमी पैदा हुई और लगा इसे कि जो विक्टिम है वही कल्प्रेट है, लेकिन फिर उन्होंने कल उसकी वजाहत की कि जो ज़्यादती करता है वही असल में कल्प्रेट होता है। तो बुनियादी गलती तो उस कल्प्रेट की है, चाहे वो औरत की शक्ल में हो चाहे वो मर्द की शक्ल में। जो ज़्यादती करेगा वो बुनियादी तौर पर मुजरिम होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप उस सारे पस मंज़र को भी समझने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है कि हमने मेल फीमेल रिलेशनशिप के अंदर जो लोगों को तरबियत देनी थी वो क्यों नहीं हो पा रही? क्या वजह है कि लड़कियों के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती जा रही है, उनको सेक्सुअली हरासमेंट के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, उनको आप एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं दे रहे जहां वो विदाउट एनी फियर मूव कर सकें, ठीक है ना। तो इसलिए पूरी सोसाइटी का डायलेमा है। इसमें हमारी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारी हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारा माशरा इन्वॉल्व है, इसमें मीडिया इन्वॉल्व है, इसमें आपका एजुकेशन सिस्टम इन्वॉल्व है, हमारी रिलीजियस एजुकेशन इन्वॉल्व है। ये सारे जिम्मेदार हैं ये जो कुछ इस वक्त औरतों के खिलाफ सोसाइटी में जराइम हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है, सब अपने आप को जस्टिफाई करके ना सारा मलबा औरत पे डालने की कोशिश करते हैं। ये जो सोसाइटी ऐसी सोसाइटी भी है जहाँ एक लड़की को तलाक हो जाए तो उसमें भी लड़के के कसूर से ज़्यादा लड़की का कसूर समझा जाता है। तो जब आप सारा मलबा लड़की पे डालते हैं तो उस लड़के को आप उसमें से निकाल देते हैं, उसको आप बरी जुमा कर देते हैं। आपको याद है एक रस्म है कारोकारी, जिसको हम काला काली भी कहते हैं, यानी 2 लड़के लड़की के दरमियान अगर ताल्लुकात हैं तो उनको वो नाजायज़ ताल्लुकात के तौर पर उनको कत्ल कर देते हैं। लेकिन अगर आप अमूमी तौर पे देखें कि इस तरह के वाक़यात में कत्ल जो है ना वो लड़की होती है, लड़का भाग जाता है या लड़के को भगा दिया जाता है। भाई अगर उनके ताल्लुकात थे तो फिर लड़का भी तो उतना ही अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन लड़के को किसी ना किसी शक्ल में उसको बचा के भगा दिया जाता है। लड़की के ऊपर जो है ना वो मुजरिम जो है ना वो। नूर मुकद्दम केस पे भी कुछ ऐसा ही वाक़या रौनमा हुआ कि लड़के को पागल करार दे दिया गया कि वो मेंटली डिसेबल है, जिस वजह से उसको माफ़ कर दिया जाए। बाद में टेस्ट करवाने अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में लोग जो है ना इस तरह के क्वेश्चन जो है ना इस्तेमाल करते हैं जिससे मुलजिम को बचाया जा सके। ये कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ। हम ये पागलपन करवा के ज़हनी तवाज़ुन का खो गया था, वो अपने हवास में नहीं था, वो मेडिसिन बहुत लेता था, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब इसका जो जैसे कहते हैं कि वेरीफाई करना ये मेरा और आपका काम तो नहीं है। ये तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम है, पाकिस्तान की जो उससे रेलिवेंट इदारे हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या वो वाकई पागल है। लेकिन अगर पागल भी है तो सवाल ये है कि वो इतना पढ़ लिख कैसे गया बाहर तक, उसकी डिग्रियाँ, फिर वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को लेक्चर देता था, तो काउंसलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में, और बड़े बड़े एलीट स्कूलों में जाकर उसने सेशंस किए। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो पागल है। अब अगर आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जी उसको पागल बना के हम बचा सकते हैं, तो ये हमारे अदालती निज़ाम के लकूनाज हैं, खामियाँ हैं, जिनकी वजह से बड़े लोग जुर्म करके भी बच जाते हैं। मैं एक ज़माने में एसिड थ्रोइंग के वाक़यात को देखता रहा हूँ जहाँ औरतों पे तेज़ाब फेंक दिए जाते थे, सरेआम उसने तेज़ाब फेंका है, लेकिन उसके बावजूद वो बच जाते हैं। जी गवाह नहीं मिले, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, तफ्तीशी निज़ाम जो है वो पुलिस से मिली भगत करके मामला तय कर देते हैं। तो अगर आज भी अगर आप इतने ताकतवर फ़र्द को बचाएंगे तो फिर इसका मैसेज क्या जाएगा कि इस मुल्क में इंसाफ जो है वो तो सिर्फ अमीर तबके के लिए तो दूसरा होगा और गरीब तबके के लिए दूसरा होगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि जनाब ये जो ख़ास तौर पे उस्मान मिर्ज़ा वाला केस और ये वाला केस जो है जाफ़र वाला केस, इसमें उन्होंने IG इस्लामाबाद को बुलाया कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ न किया जाए, लेकिन अभी भी ताकतवर फरीक जो है उसके अंदर मुतासिर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या इस केस में वाकई इंसाफ होता है या माजी की तरह उसी तरह से सारा मामला जो है लपेट दिया जाता है। सर, जैसे कि माजी की आपने बात की, माजी में बहुत से ऐसे रेप केसेस हमारे सामने आए कि छोटे मासूम बच्चियों के साथ, छोटे मासूम बच्चों के साथ, इवन कि हमारे जो इदारे इस तरह के हैं जहाँ पे कुरान पाक पढ़ाया जाता है, बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है, तो वहाँ पर भी इस तरह के वाक़या जो हैं
नया सामने आए, तो इस वाक़यात की वजह आप किस चीज़ को करार देंगे कि छोटे मासूम बच्चों को मोबाइल से देना, इंटरनेट यूज़ करने के लिए दे देना, बच्ची जवान है तो उसको घर से रात के 2-2, 3-3 बजे तक बाहर रहने की इजाज़त दे देना, ब्रॉड माइंडेड होना, किस चीज़ को आप कहेंगे गलत? देखिए, कोई एक फ्रीक तो नहीं है, मतलब इसमें वालिदैन का अपना रोल है। वालिदैन की कोई मॉनिटरिंग सिस्टम अपनी औलाद के ऊपर नहीं है बिल्कुल कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस किस्म की सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं, कुछ नहीं पता। तो वालिदैन भी एक हद तक जिम्मेदार है। फिर वालिदैन अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाते, तो सारा मलबा स्कूलों पे डाल देते हैं, कॉलेजों पे डाल देते हैं, वो नहीं मानता। तो एक सिस्टम वो है। दूसरा सिस्टम मैंने आपको कहा कि आपका जुडिशियल सिस्टम है। जब वो लोगों को इंसाफ नहीं देगा, लोग इबरत का निशाना नहीं बनाएगा, तो सोसाइटी में कैसे ये बात जाएगी कि जी अगर हम इस तरह का जुर्म करेंगे तो हमारे खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम, आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। फिर तीसरा फ्रीक जो है, जो मीडिया है, उसको एक हद तक इन चीज़ों के ऊपर बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। अब आप देखिए कि ख़ासतौर पे एनिमेशन बेस्ड फिल्में आ रही हैं जिसमें बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने की बातें की जा रही हैं, बच्चियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा फॉर्मल मीडिया है, वो तो इन चीज़ों पर बात ही नहीं करता, ना अखबारात बात करते हैं, ना टीवी बात करता है, जहाँ बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है। आप कहती हैं, आप खुद मैं स्ट्रॉन्ग की स्टूडेंट रही हैं, तो आपको पता है कि वो कहते हैं जी ओपिनियन मेकिंग काम है मीडिया का। तो ये ओपिनियन मेकिंग हो रही है कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों की राय बना रहे हैं मुस्बत अंदाज में। लड़के और लड़कियों को किस तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो उसको किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, ये सारी बातें भी आती थी हैं। फिर एक प्रॉब्लम देखें कि अब आपके पास पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, सेनेट में औरतों की बड़ी तादाद मौजूद है। वहाँ पे वुमेन कॉकेसेस बने हुए हैं जो औरतों के से रिलेटेड लेजिस्लेशन को मॉनिटर करते हैं, लेकिन उनकी भी कोई परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आती। आप कानून बना देते हैं, कानून का मैकेनिज्म कोई नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम कोई नहीं होता। तो हमारी जो वुमेन पार्लियामेंटेरियन है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी कोई रोल प्ले नहीं करते। हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर हैं वो एक जस्टिफिकेशन नोट दे देते हैं, सारा मलबा बच्चे पे, बच्ची पे डाल देते हैं, माशरे पे डाल देते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं अपने लोगों को। तो ये अगर सारा रवैया हमारा ये होगा कि हमारे जो लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, जो जिम्मेदारान हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं कबूल करेंगे तो फिर उन विक्टिम लोगों का क्या बनेगा? क्योंकि देखिए ना, दुनिया में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा, जराइम हर एक के खिलाफ होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा विक्टिम का सहारा होता है ना, वो आपका इंसाफ का इदारा होता है। अगर आपका इंसाफ का इदारा फ़ाल तरीके से, शफाफ अंदाज से काम कर रहा हो तो कल्प्रिट लोगों को सज़ा दे के माशरे में इबरत बनाया जा सकता है और आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सलमान साहब से हमने बात की, इनकी राय कुछ इस तरह से है कि माँ बाप को अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए कि किन एक्टिविटीज़ में, किन सरगर्मियों में वो मुब्तला हैं, और अगर जवान बच्ची है या जवान बेटा है तो उस पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। कहा जाता है कि बच्चा हो जाए तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है, सिर्फ इस वजह से कि इसकी अच्छी तरबियत करनी है, इसका अच्छा फ्यूचर बनाना है। आजकल के ज़माने में मॉडर्न होने की खातिर कि हमारे बच्चे मॉडर्न हैं, हमारी बच्चियाँ मॉडर्न हैं, बच्चियों को रात के 2-2, 3-3 बजे तक घर से बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है, और लड़कों की बात की जाए तो उनसे तो पूछा ही नहीं जाता कि बेटा कहाँ गए थे और क्यों आए थे, क्योंकि हमारी तरबियत में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। और अगर कोई जराइम हमारे सामने आता है तो हमारी अदालतें, हमारा कानून इस तरह का नरम हो जाता है कि उन्हें सज़ा नहीं मिल पाती। इसी वजह से शायद आए दिन कोई ना कोई जुर्म सामने आता है और खुलेआम जुर्म होते जा रहे हैं। गुनहगार जो हैं वो खुलेआम फिर रहे हैं, एक के बाद दूसरा जुर्म करते जा रहे हैं। नूर मुकद्दम के केस पर अब हम देखते हैं कि क्या राय दी जाती है, कौन सा इस पे केस आता है, कौन सी इस पे सज़ा दी जाती है जो कि उनके कातिल हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।